Good morning, students. Today we are going to start our unit 10, that is oscillations and waves. Unit 10, oscillations and waves. So before starting this unit, we should have some basic idea about the basic terms that are related with the oscillations. First of all, we will discuss about periodic motion. What do you mean by periodic motion? Periodic, whenever periodic is used, periodic word is used, then it is already comes in mind that anything which repeats after a specific interval of time, that is called periodic. So periodic motion is a kind of motion which repeats after specific time interval. So any motion which repeats after a specific time interval, that is called periodic motion. For example, motion of earth around the sun. We know that after 365 days, earth complete its revolution around the sun. Similarly, rotation of earth about its own axis. We know that after 24 hours, it again repeats its rotatory motion. So these kind of motions are called periodic motions. Similarly, motion of a pendulum. What is a pendulum? A thread attached to a rigid support and a bob is fixed at other end. If it is disturbed from its mean position, it start vibrating about its mean position. After a specific interval of time, it will repeat its motion. So these kind of motions are called periodic motion. So any motion which repeats after a definite interval of time, that is called periodic motion. Now we will specifically discuss about oscillatory motion. Oscillatory motion or vibratory motion. So whenever we talk about vibration, what comes in our mind? Vibration is any kind of motion in which a particle move around a fixed position to and fro. So this kind of motion we call it as a vibration. So oscillatory motion क्या होता है? एक fixed point है, suppose यहाँ पे A point है, इसको मैंने डिस्टर्ब किया बी पॉइंट तक, यहां तक आ गया, उसके बाद ये इसके अराउंड ही क्या करती रहे, रिवॉल्व करता रहेगा, टू एंड फ्रो क्या होगा, मोशन होगा. इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन एंड vibratory motion. So these are called oscillatory motion and this is called specifically oscillations. So all the oscillatory motions are in the category of periodic motion. So all oscillations are periodic, but vice versa is not applicable. Why this so? It is not necessary कि all the periodic motions are necessarily be oscillatory motion. Why it is so? For example, motion of earth. We know here is a sun and here is a orbit of earth. So earth is revolving around the sun, but it is completing its path in a definite interval of time and it is repeating it after it that. So it is a periodic, but there is a
no oscillation, no to and fro motion, so this is not an oscillation. So it is not necessary कि हर periodic motion क्या हो, oscillation हो. Now we will discuss about harmonic oscillation. Harmonic oscillation. So what is a harmonic oscillation? Any oscillation which can be represented by a single harmonic function. So any kind of oscillation, बेटे हम अगर किसी भी चीज को स्टडी कर रहे हैं तो उसके मैथमेटिकल फॉर्म भी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. तो मैथमेटिकली इसको अगर हम ऑसिलेशन को एक सिंगल हार्मोनिक फंक्शन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सके तो दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन. एंड वी नो व्हाट आर द हार्मोनिक फंक्शन. हार्मोनिक फंक्शंस कौन से होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम. स्पेशली इनमें क्या आते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा. तो सपोज कोई बॉडी क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है हार्मोनिकली, तो दैट मीन्स उसका जो डिस्प्लेसमेंट y होगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी a साइन ओमेगा टी और a cos omega t. So this kind of equation is applicable to the motion of the particle. So this is called a harmonic oscillation. अगर sin omega t है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, suppose it is y, this is t. तो हमें पता है कि साइन वेव कैसे होती है, फर्स्टली 0 पे 0, देन मैक्सिमम एट 1, देन अगेन मिनिमम, देन अगेन मैक्सिमम. सो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. अगर कॉस होगा तो हमें पता है 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस एट 0, 1 होती है. कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1. तो ये कैसे स्टार्ट होगा, इसका मोशन हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से. सो दिस काइंड ऑफ मोशंस आर कॉल्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस. फाइन. Now we will discuss about the basic terms that are related with the harmonic oscillation. Now, first of all, we should know about time period. First term is the time period. Next is frequency. Next is angular frequency. Next is a displacement. So these are some basic terms before studying about the periodic motion. तो टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड. सपोज एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी वेव को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह साइन फंक्शन से. सपोज लेट कर लिया मैंने कि ये क्या है, एक हमारा पीरियोडिक या हार्मोनिक ऑसिलेशन हो रही है. तो हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड क्या है हमें पता है, दिस इज क्रस्ट एंड दिस इज ट्रफ. फाइन. तो इसको हम यहां से यहां तक, ये क्या होती है, 1 वेव. तो टू कंप्लीट 1 वेव कितना टाइम रिक्वायर्ड है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी. सिमिलरली फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड इन 1 सेकेंड. तो पर सेकेंड पार्टिकल कितने बार ऑसिलेट हो रहा है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इससे, न्यू से.
और ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टी। हमें पता है फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्स होती है, तो इसकी यूनिट होगी हर्ट्स। और टाइम पीरियड की क्या होती है, सेकेंड, इसकी होती है सेकेंड। अब आगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जब बात आती है तब मोशन क्या होना चाहिए बॉडी का, रोटेटरी मोशन में हम किसकी बात करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। तो सिंपली अगर मैं फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दूं बाय द फैक्टर 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको डिनोट करते हैं W से, तो दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और आई कैन राइट इट एज एंगल सबटेंडेड बाय पार्टिकल पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में पार्टिकल का जो मोशन है वो कितना एंगल सबटेंड करता है, उसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो इसकी यूनिट क्या होंगी, दिस इज मेजर्ड इन रेडियन एंड दिस इज मेजर्ड इन सेकेंड। सो रेडियन पर सेकेंड is its unit. So now we are left with the displacement. Displacement, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ये नहीं है कि सिर्फ डिस्टेंस ही होगा या पार्टिकल ने कितना दूरी तय की, नहीं। डिस्प्लेसमेंट कोई भी ऐसी क्वांटिटी दैट इज वेरिंग विद द टाइम, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एनी क्वांटिटी दैट वेरीज विद टाइम, तो उसको हम कंसीडर करते हैं एज डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेंडुलम की बात करूं तो पेंडुलम के केस में क्या वेरी कर रही है, थीटा, तो ये क्या हो गया, इसकी डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम इस तरह से। सिमिलरली अगर मैं बात करूं साउंड वेव्स की, तो साउंड वेव्स में क्या वेरी कर रहा है, प्रेशर वेरी कर रहा है, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन। तो ये क्या हो रहा है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन में क्या वेरी कर रहा है, प्रेशर। तो प्रेशर क्या, उसको कंसीडर करेंगे एज ए डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी क्वांटिटी विद द टाइम में वेरी करती है उसको हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या लेकर चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पीरियोडिक फंक्शन। तो अगर मोशन क्या है, पीरियोडिक है, जो खुद को क्या करता है, रिपीट करता है आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, तो पीरियोडिक फंक्शन भी क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन दैट रिपीट्स इट आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। तो पीरियोडिक फंक्शन आर दैट फंक्शंस, और हम किन किन को कंसीडर करते हैं इसमें, साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी। अगर मैं साइन की बात करूं तो इसकी वेव कैसे ड्रॉ होती है, ए इज द एम्पलीट्यूड, तो कैसे ड्रॉ होगी, पहले इस तरह से 0 से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ तक रीच करेगा मैक्सिमम, देन अगेन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग। सिमिलरली फिर ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, डाउनवर्ड नेगेटिव वैल्यूज हो जाएंगी इनकी, फिर ये इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा। तो ये क्या है, एक तरह का पीरियोडिक फंक्शन है दैट इज रिपीटिंग आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। एंड व्हाट इज अ फेज, फेज क्या है, फेज एक ऐसी क्वांटिटी है जो क्या सिग्निफाई करती है, पोजीशन एंड direction of motion of a particle at a specific time। तो किसी भी टाइम पीरियड, टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड पे बॉडी कहाँ पर है, उसकी पोजीशन क्या है और उसका मोशन का डायरेक्शन क्या है, इस चीज को हम किससे डिनोट करते हैं, फेज। और जनरली ये क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन और कॉस। तो जो एंगल इनके साथ सिग्निफाई हम करते हैं उसको बोलते हैं हम फेज। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा ए वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। फाई नॉट क्या है, इस सारे को मैं क्या बोलूंगी, फेज, इट इज कॉल्ड फेज। तो फेज को डिनोट करते हैं फाई से एंड इट विल बी ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो जब टाइम पीरियड 0 था तो फेज की वैल्यू क्या होगी,
obviously phi naught. So this is the initial phase. फाइन. तो जैसे जैसे टी की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो हमारे पास फेज क्या की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती जाएगी. तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, सिंस इट इज अ एंगल दैट इज विद द साइन और कॉस, सो इसको हम डिनोट किससे करते हैं, रेडियन से. फाइन. सो इट इज कॉल्ड फेज ऑफ अ हार्मोनिक मोशन. नाउ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? मैंने आपको बताया एक ऐसा मोशन, ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द सिंपल हार्मोनिक, विद द सिंगल हार्मोनिक फंक्शन, उसको बोलते हैं हम हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, बॉडी क्या है उसको रिप्रेजेंट, फर्स्ट जो उसकी की फीचर है वो तो सेम रहेगी कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल हार्मोनिक फंक्शन से. और दूसरा क्या है, जो फोर्स होगी, बट जब कोई भी चीज अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होती है तो वहां पे क्या आती है, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है. एंड दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन. तो मीन पोजीशन की तरफ ये हमेशा क्या होती है, डायरेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई O पॉइंट है, फाइन. सो O इज द मीन पोजीशन, पार्टिकल यहाँ पे है तो उसका क्या होगा, इस तरह से इधर इधर जाएगा वो. ठीक है, इसको क्या करा दिया मैंने, ऑसिलेट करवाया. कहाँ तक लेकर आई, डिस्टर्ब करके A पॉइंट तक. फिर इसमें क्या आएगी, एक रिस्टोरिंग फोर्स एफेक्ट करेगी जो इसको वापस लेके जाने की कोशिश करेगी. सपोज यहाँ पे P तक उसने आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x. सो दिस इज x. और इसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये क्या कर जाएगी, ओवरशूट कर जाएगी अपनी मीन पोजीशन को और ये जाएगी B पॉइंट तक. दैट इज सिमिलरली इन केस ऑफ पेंडुलम आप देख सकते हो, अगर ये मीन पोजीशन है इसको हम यहाँ तक डिस्टर्ब कर दिया तो यहाँ पे जाके रुक नहीं जाएगा, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ये क्या जाएगा, आगे जाएगा. फिर यहाँ पे नहीं रुकेगा, फिर रिस्टोरिंग फोर्स इसको मीन पोजीशन की तरफ लाएगी, फिर ये इसको ओवरशूट करके जाएगा. तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो इसको अगर मैं डिनोट करूँ, सपोज पार्टिकल को मैं लेकर जा रही हूँ तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x. x क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. माइनस क्या डिनोट करता है कि अगर हम इधर जा रहे हैं तो ये फोर्स हमेशा ऑपोजिट, मतलब टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी. और अगर मैं इसकी यहाँ पे एक सिंबल लगाऊं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस kx. तो ये क्या है, इक्वेशन होती है जो क्या करती है, एप्लीकेबल होती है इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. और बाकी इसको रिप्रेजेंट करने का वे तो सेम ही होगा, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट. तो ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन. यू कैन यूज कॉस ऑल्सो हेयर. अगर तो साइन है तो बॉडी ने स्टार्ट कहाँ से किया, जीरो से, तभी ये वाली जो वेव होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है. अगर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं हम उसके मोशन को कंसीडर करना तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉस. सो बोथ द वेव्स आर सिमिलर, तो हम कर सकते हैं इसको भी यूज. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम क्या करते हैं, कॉस या साइन को इजीली क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं. दिस इज द इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन.